Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Mannu Issue ACCA classes. And in today's video, I have been discussing the question Darasco and ये आपका ACCA PM और जिसको F5 भी कहते हैं उसका क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द सेक्शन बी। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसमें टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सारे को कंसिडर किया हुआ है एंड ये आपको एसीसी का एग्जामिनर रिपोर्ट में भी मिल जाएगा। एसीसी के एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज इन द सितंबर दिसंबर 2021 अटेम्प्ट में एक्सप्लेन किया है। ओके, ऑलराइट। सो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं एंड लेट्स मेक इट इजी। ओके, so if you're watching my video for the first time, do not forget to subscribe my channel and share it among your friends so that they could also have the benefit. And one more thing I would like to highlight, study what I found in my YouTube channel that 89% of my viewer has not subscribed to my channel. So it means they are loving my content but they are not subscribing, right? So it really feel bad being a content creator on the YouTube, and that's also niche one education. So as you know, अभी के टाइम में किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, right? So but what I found, 89% of people are whatever subscriber I'm having, the 89% has not subscribed, and but they are still watching my video. And it was really, I really get demotivated. So being a content creator, if views आएगी, subscribe आएगी, so it will motivate me to make the video further. So इसीलिए I will request you all the guys, please subscribe to my channel because motivation आएगा तभी video बनेगा, right? So let's discuss today question, that's Darasco. एंड पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड फिर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट की ओर चलेंगे। हालांकि ये सेक्शन बी है, सो सेक्शन बी में क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड यू द सीन एंड द बैकग्राउंड एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल आस्क यू द 5 क्वेश्चन। Okay, so let's read the question. Darasco is a global consumer electronics manufacturer. It sells its own brand of smartphones, computer and personal entertainment devices. It uses target costing. So ये दरास्को एक कंपनी है जो ये ग्लोबली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है एंड इसका अपना खुद का ब्रांड है दैट इज रिलेटेड टू द स्मार्टफोन and computer, personal entertainment, right? Personal entertainment devices, and it uses the target costing. Okay, and DPAD, feasibility study result. So basically the board of Darasco has conducted a feasibility study in order to decide whether or not to launch a new device. So जो board है कंपनी का, उन्होंने decide किया है ये उन्होंने एक study और feasibility study किया है कि right कि ये जो product है ये जो हमारा ये devices है D-pad, इसको launch करे या नहीं in 20X9. And the D-pad का life cycle is 3 years, over which 80 million unit will be sold. The variable manufacturing and selling cost of the D-pad is currently estimated at 123 per unit, and the total fixed production cost, including the investment and overhead, is budgeted to be the 3,360 million over the whole life cycle. All right. So the initial estimate of the selling price included in the feasibility study for the D-pad was calculated to ensure a profit markup of 60%. So basically they have provided you the background कि इस product का life cycle 3 years होगा और इसका variable cost, बाकी भी cost सब provide किया गया। हालांकि life cycle costing में we consider every cost, right, from the designing stage to the till what is saturation point where the demand of the product falls. Every step costing is considered. एंड उसके बाद में इन्होंने सेलिंग प्राइस बताया जो कि जो मार्कअप 60% मार्कअप है। एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एफए की वीडियो में भी कहा था मार्कअप और मार्जिन इट्स डिफरेंट, ठीक है। मार्कअप कॉस्ट पे लगता है एंड मार्जिन आपका सेलिंग प्राइस पे लगता है। अगर मार्कअप दिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 160%, ठीक है। अगर मार्जिन दिया उस केस में आपका सेलिंग प्राइस सिर्फ 100% होगा। जब कैलकुलेशन करेंगे आई विल मेक इट मोर क्लियर, ट्रस्ट मी। ओके,
सो देन उसके बाद डीपैड का मार्केट रिसर्च एनालिसिस हुआ, जहाँ पे बोर्ड डिसाइडेड टू कमीशन सम मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन द प्राइस कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर डीपैड. Sales volume, sales price were estimated for the various stages of DPAT product life cycle as follows. So different life cycle का different sales volume है along with their respective selling price. All right. So based on the market research analysis, the board has approved the development of DPAD as long as the total production cost, including the manufacturing, investment, and overhead, does not exceed 13,000 million. So जो market analysis किया है उसके according इस product को बनाने के लिए जो cost आएगा that will not exceed 13,000 million, means 13,000 लगेगा. ठीक है. उसके बाद में they have provided the title for the retail outlet. And the board of Darasco is considering the opening of some retail outlet which would be located in the major cities around the world. The outlet as well as selling Darasco product will also free of charges surgeries where the product users can seek help on how to use their devices and have their devices repaired. The board has been discussing whether it is possible to use target costing in relation to the retail outlet. The following statement have been made. The board has been discussing whether it is possible to use target costing in relation to the retail outlet. The following statement have been made. So three of the director has made different statement and we will read it later on. So let's read out what the first requirement is. Which of the following statement about the use of target costing at the Darasco are correct? So the question पूछ रहा है आपका जो target costing use कर रहा है Darasco, so उसका यूज क्या हो, आई मीन कौन सा जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें से कौन सा यूज है टारगेट कॉस्टिंग का. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट रिलेज ऑन द जस्ट इन टाइम प्रोसेस इन ऑर्डर टू वर्क. नहीं, आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग आपका जस्ट इन टाइम इन प्रोसेस पे वर्क करता है, आपका टारगेट कॉस्टिंग नहीं. ऑलराइट. सो वन ऐसे रॉन्ग हो गया तो आपका ऑप्शन ए भी इलिमिनेट हुआ एंड सी भी इलिमिनेट हुआ. ठीक है. एक और चीज, सम ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग कि आई रियली गेट कंफ्यूज इन द लाइक थ्योरी पार्ट क्वेश्चन. उस केस में आप ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखें. ठीक है, वो आपको हेल्पफुल होगा टू फाइंड आउट योर राइट आंसर. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट कैन बी यूज अलोंगसाइड द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड द प्लानिंग. ऑफ कोर्स आप टारगेट कॉस्टिंग को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के साथ यूज कर सकते हैं. ऑलराइट. सो ऑप्शन बी इज ओनली द करेक्ट वन. So next question, what is the initial selling price of DPAD from the feasibility study result to the nearest whole dollar? ये जो क्वेश्चन में आपका nearest whole dollar to 2 decimal place 3 decimal place, ये बहुत ध्यान से पढ़ें. इवन you will get the right answer, but आप जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस फॉर्मेट में अगर आंसर नहीं लिखा आपने, then you won't be get credit for this question. ओके. सो बी केयरफुल. इसमें बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं बिकॉज एग्जाम में प्रेशर होता है, वो एग्जाम टाइमिंग भी रनिंग आउट होता है ना. सो इसीलिए क्या होता है, ये चीज पार्ट मिस हो जाता है रीड करने में. सो स्टार्टिंग से हैबिट रखे इस चीज को लुक आउट करने का, फाइंड आउट करने का क्वेश्चन का आंसर किस चीज में रिक्वायरमेंट है, किस डेसिमल में रिक्वायरमेंट है, किस नियरेस्ट होल डॉलर में रिक्वायरमेंट है. ठीक है, वो चीज try to make a habit to find this whether the question is asking the answer in the any specific format or not. All right. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इनिशियली फिजिबिलिटी स्टडी रिजल्ट के अकॉर्डिंग. फिजिबिलिटी जो स्टडी था उसमें सेलिंग प्राइस कहीं नहीं दिया गया था, बट इन द लास्ट सेंटेंस व्हाट दे सेड द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड इन द फिजिबिलिटी स्टडी फॉर डीपैड वाज कैलकुलेटेड टू इंश्योर द प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 60%. ठीक है, सिर्फ मार्कअप का बात कह दिया. सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. तो हमको पहले कॉस्ट पता होना चाहिए. क्या हमको कॉस्ट पता है? नो. हम लोग को बस ब्रेक डाउन दिया हुआ है. एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग कॉस्ट का 123 पर यूनिट, उसके बाद 80 मिलियन यूनिट्स जो सोल्ड हुआ वो बताया गया है, एंड टोटल फिक्स प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट ये बताया गया है जो कि टोटल में दिया गया है. सो लेट्स कैलकुलेट दिस इन द पर यूनिट. ठीक है, अगर हमारा आंसर टोटल फिक्स्ड प्रोडक्ट कॉस्ट जो 3360 मिलियन है ना, इसको पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं. कितना यूनिट सोल्ड हुआ है? 80 मिलियन. सो वी विल डिवाइड इट बाय 80. सो 42 पर यूनिट आया हमारा. ठीक है,
इसको हम लोग कहीं नोट डाउन करते हैं। तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? Okay, so it's 42, right? Let's check it one more time. So 3360 था and we sold 80, so 42, right? It's per unit. Don't forget this is per unit. ओके एंड देन हमारा वेरिएबल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना है? इट्स 123 पर यूनिट। सो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? एडिंग करने के बाद कितना आएगा हमारा? इट विल बी, लेट्स ट्राई टू डू दिस इन द एक्सेल, आई थिंक इट विल बी मोर बेटर। लेट इट बी। ओके ये आपका दराज को का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो गिवन वाज 3360 एंड ये टोटल था, ठीक है, ये डॉलर में। देन हमारा टोटल यूनिट कितना था? इट वाज 80 मिलियन, ठीक है, ये भी मिलियन में, ठीक है, पर ये यूनिट है और ये डॉलर है, ये पैसा है। एंड इफ पर यूनिट कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा? लेट्स डिवाइड दिस टू, इट विल बी 42 पर डॉलर पर यूनिट, ठीक है। ओके सो ये हमारा पर यूनिट में आ गया। ओके सो हमारा वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी पर यूनिट में दिया है, दैट्स 123 डॉलर पर यूनिट। अब इसको टोटल करने के बाद कितना आया हमारे पास? टोटल कॉस्ट पर यूनिट डी पैड बनाने के लिए इट्स 165 पर यूनिट, ठीक है। सो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्कअप कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मार्कअप दिया हुआ है 60%, ठीक है। सो इट्स 60% मार्कअप, ठीक है। एंड मैंने क्या कहा था? इफ मार्कअप दिया हुआ है, इन दैट केस आपका सेलिंग में आपका मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सो ये हो गया एक मार्कअप, ठीक है। मार्कअप मान लो 60% है एंड दूसरा हो गया आपका मार्जिन, ठीक है। मार्जिन आपका वो भी 60% है। लेट्स एनालाइज द डिफरेंस, ठीक है। एंड मार्जिन कहाँ लगता है? मैंने कहा ये सेलिंग प्राइस पे लगता है। मार्कअप कहाँ पे लगता है? आपका कॉस्ट पे लगता है। ऑलराइट, तो इफ मान लो आपका कॉस्ट है 60, ओके, कॉस्ट 60 रखते हैं अभी एंड लेट्स फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस एंड अदर थिंग। सो मार्कअप 60% दिया है तो आपका सेलिंग प्राइस करने के लिए आप सिंपली ये इंटू 100% प्लस 60% कर दोगे, दैट मीन्स 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी 96%, ठीक है। अब इसी केस में मान लो मार्जिन 60% दिया है तो ये आप यहाँ पे मार्जिन निकालने के लिए मार्जिन, तो ये इसका आप क्या करोगे? 60% करोगे, मार्जिन का 60%, इस केस में 57.6 आएगा, 7 से 57.6 आएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया 96%। कैसे निकाला हम लोग? 1.6 किया, ठीक है। अब मान लो आपका सेलिंग प्राइस दिया है यहाँ पे 96, तो ये आपका मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉस्ट होगा ना आपका, दैट विल बी दिस माइनस दिस 40%, ठीक है। तो
बेसिकली जब मार्जिन दिया है उस केस में आपका सेलिंग प्राइस 100% होगा। अगर कॉस्ट की बात करें तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 40%। बट अगर मार्कअप दिया है उस केस में आपका कॉस्ट हो जाएगा 100% एंड आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 160%, जो 100% कॉस्ट का एंड मार्को को जोड़ के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन केस नॉट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई। सो मार्कअप दिया है 60%, टोटल कॉस्ट पता चल गया हम लोग को, टोटल कॉस्ट पर यूनिट वो भी पता चल गया है हम लोग को। राइट, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज सेलिंग प्राइस। वो कैसे फाइंड करेंगे? अब मार्कअप दिया है तो कॉस्ट हमारा हो जाएगा 100%, सेलिंग प्राइस होगा 100 प्लस 60 मीन्स 160%। तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, सो दैट विल गिव 264। So 264 is your selling price for the answer B. ठीक है, let's move to the next question, and that is question number 3. Based on the market research analysis, what is the total cost gap of the D-pad if Darasco want to achieve a target profit margin of 45%? So I hope you guys know what the cost gap is. So basically cost gap क्या होता है? In the target costing, first of all हम लोग उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिजाइन डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है। Once that has been finalized, then we will look for the selling price of that product in the market that customer is ready to pay. उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कितना रेडी है पे करने के लिए, हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। देन हमारा सुइटेबल प्रॉफिट मार्जिन वहां से एडजस्ट करने के बाद वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट दैट इज नोन एज ए टारगेट कॉस्ट। मतलब उतना प्राइस में ही हमको, उतना कॉस्ट में ही हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड मान लो हमारा कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट उससे ऊपर चला गया, जो डिफरेंस आएगा दैट इज द कॉस्ट गैप। सो लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट गैप फॉर द डी पैड। अब किससे? मार्केट रिसर्च एनालिसिस से। सो मार्केट रिसर्च एनालिसिस में दे हैव प्रोवाइडेड द सेल्स वॉल्यूम अलोंग विद द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके पहले साइड में नोट डाउन करते हैं और वी विल सिंपली कैलकुलेट इट इन द एक्सेल। So this one is the question number 3, right? So हमारा क्या क्या कौन कौन सा स्टेज है? Let me copy all this. Introduction, then we have the growth, then we have maturity, and then we have the decline. ठीक है, सो यहाँ पे यूनिट कितना है? लेट्स राइट इट डाउन। इंट्रोडक्शन में इट्स 8 मिलियन, 8 मिलियन को ओमिट करते हैं, 8, दिस वन इज 14, then 56 2, all right, and ये यूनिट सोल्ड। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट रखते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 425, then we have 300, then 220, then we have 120. So these are the selling price and the units. So हम लोग टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, so how we will get that? Simply multiplying these two, right? तो हमारा टोटल सेल्स आ गया, तो अब इसको ऐड करेंगे। सो गेट द टोटल सेल्स वॉल्यूम, आई मीन सेल्स रेवेन्यू ओवर द लाइफ साइकिल। ठीक है, सो दैट इज 20160 एंड ये सारा प्राइस में है। सो लेट्स कन्वर्ट टू द करेंसी। Yes, now it's look good. So this is the total revenue. All right.
सो नाउ वी गॉट टोटल रेवेन्यू। अब हम लोग को सेल्स मालूम चला गया, सेलिंग प्राइस भी अभी दूर है क्योंकि अभी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग को साथ में यूज कर रहे हैं। सो हम लोग को टोटल सेल्स रेवेन्यू पता होना चाहिए ओवर द लाइफ साइकिल, जो कि आप पता चल गया, ठीक है। एंड ये मिलियन में है, ऑलराइट, ये मिलियन में है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम लोग को मार्जिन घटाना पड़ेगा यहाँ से। सो व्हाट इज द मार्जिन गिवन इन द क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन में? मार्जिन इट्स 45%। मार्जिन कितना है? एट द रेट ऑफ 45%। तो 45% मार्जिन घटाने के बाद सिंपली 0.45 कर देती हूँ। इट्स मार्जिन हमारा 9072, अगेन ये भी मिलियन में है, ओके। एंड जो फाइनल आएगा वो हमारा होगा टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कितना आया? वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टू 11088 and again this is in the million. So but हमारा actual cost कितना incurred हुआ? In the question they have provided that's 13,000. You can see in the question. All right, I will show you. Yeah. So actual में जो cost लगेगा it won't exceed 13,000 million, question ने बोल रखा है. So now बट हमारा टारगेट कितना था कॉस्ट इंकर करने का? इट वाज ओनली 11,088, बट एक्चुअल में 13,000 इंकर किया। सो देयर विल बी अ कॉस्ट गैप। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट गैप? वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस टू, दैट विल गिव अस द फिगर ऑफ 1912 मिलियन, ठीक है। ऑप्शन बी, ओके। Let's move to the 4. The following proposal has been made in order to close the cost gap of the DPAD. Which of these proposal are likely to reduce the cost gap? So basically जो भी cost gap हम लोग ने निकाला 1912 million, so इसको close करने के लिए इन तीनों ऑप्शन में से which will be likely, कौन सा reduce करेगा वो हम लोग को find out करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंट्रोड्यूस 24 आवर ऑफ वर्किंग इन द फैक्ट्री वेयर DPAD इज मेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड बिल्ड द इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री भी बिल्ड कर लोगे, उससे आपका सेल जब तक नहीं होगा वो आपका नॉन वैल्यू एड ही होगा। यहाँ पे कॉस्ट कैप मतलब हमको कॉस्ट रिड्यूस करना है, ठीक है। इन्वेंट्री रखकर हमको कॉस्ट बढ़ाना नहीं है। सो इट इज नॉट feasible. Incorporate quality assurance inspection into the manufacturing process to reduce the फॉल्टी यूनिट। ऑब्वियसली अगर आप इंस्पेक्शन करते हो तो जो फॉल्टी यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिफॉल्ट वेस्टेज जा रहा है वो रिड्यूस होगा, जिससे आपका कॉस्ट बच सकता है। सो टू कुड बी द लाइकली ऑप्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप। And the last says increase the sales and marketing spend in order to boost the sales volume of the DPAD. Again आप sales volume को increase कर रहे हो, ना कि आप target cost को reduce कर रहे हो। So हमको cost reduce करना है, sales नहीं, ठीक है। So only two is the option. And the last, in relation to the use of the target costing for the retail outlet, which of the director statement are correct? So ऊपर जो 3 डायरेक्टर का स्टेटमेंट था, which one is the correct in relation to the target costing? डायरेक्टर एक्स क्या कहता है? टारगेट कॉस्टिंग कैनॉट बी यूज्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट टारगेट सेलिंग प्राइस फॉर द सर्विस। हालांकि ऑब्वियसली सर्विस के केस में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द सेलिंग प्राइस, बट ऐसा नहीं है वी कांट यूज इट इन द सर्विस इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स वी कैन यूज द टारगेट कॉस्टिंग इन द सर्विस इंडस्ट्री, राइट? सो इट इज इनकरेक्ट। डायरेक्टर वाई क्या कहता है? Target costing is more useful when what is being developed has a high degree of variability, such as developing a new service. अब देखो टारगेट कॉस्टिंग ऑब्वियसली सर्विस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, बट अगर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब जहां चेंजेस की बात ज्यादा है, हाई चांसेस है, देन वहां पे मोस्ट यूजफुल तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बोल रहा है, सो उस केस में इट विल बी लेस यूजफुल, ना कि मोर यूजफुल, ठीक है। सो मैंने जैसे कहा था बी केयरफुल विद द वर्ड मोस्ट, ऑलवेज, नेवर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टारगेट कॉस्टिंग, डायरेक्टर जेड का स्टेटमेंट क्या कहता है? टारगेट कॉस्टिंग व्हेन डेवलपिंग ए न्यू सर्विस इज डिफिकल्ट बिकॉज सर्विस आर इंटेंजिबल एंड मेजरिंग ए यूनिट ऑफ सर्विस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। बात सही है। आपका सर्विस के केस में आपका जो सर्विस का कैरेक्टर है वो 4 जो था ना,
वो याद रखना। उसके वजह से जैसे कि सर्विस इंटेंजिबल होता है, मतलब दिखता नहीं है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस केस में डिफिकल्टी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है वी कांट यूज द टारगेट कॉस्टिंग, राइट? तो इसीलिए जेड का जो स्टेटमेंट है इट्स करेक्ट। ओके, so that's it. We have done all the question related to the RASCO. I hope this is very useful for you guys. In case of any confusion, do let me know in the comment box. I will try to explain it again if you have confusion. But please don't forget to subscribe my channel and share it among your friends. Okay, so what I found, 89% of my subscriber has not subscribed my channel, but they are still watching my video. So it means my content is useful, right? So in that case, being a content creator, if you don't subscribe, don't like, don't comment, then it won't motivate me to go further. So please subscribe to my channel, share it among your friends. It will motivate me to go further. So thank you so much, guys. Have a good day.